तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज हमारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की न्यू वीडियो जो है ओजोन डे पर। सो एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टुडे द 16 सितंबर 2021। Today's date is 16 September 2021, as we all know. And on this day, on 16 September every year, it is celebrated as Ozone Day, or it can be told in detail about International Day for Preservation of Ozone Layer. So what is this day? ये दिन क्या है? ओजोन डे क्यों मनाते हैं? ओजोन लेयर क्या है? ओजोन से हमें क्या बेनिफिट्स होती हैं और ओजोन से रिलेटेड जो संबंधित डेट्स हैं, the corresponding dates regarding to the International Day for Preservation of Ozone Layer has been mentioned here by me, and you will get to know about one by one in details. So let's start this video without wasting a time. So let's start. So firstly, I will discuss about how International Day for Preservation of Ozone Layer came into force or came out of origin. So firstly, on 19 December 2000, by a UNGA declaration. What is UNGA? As you all know, United Nations General Assembly. Remember, it is not the United Nations Security Council. As I have told that the UN is the group of UN is the group of several key organizations which govern the world, like the International Court of Arbitration, UNGA, UNSC, UNHRC, but the most powerful of them is UNSC, United Nations Security Council, which consists of 5 permanent members and 10 non-permanent members. The 10 non-permanent members are changed for the interval of 2 years. मतलब हर 2 साल बाद वो चेंज होते रहते हैं, 2 साल में भी। जैसे कि UNSC की सदस्यता जो अस्थायी सदस्यता है वो भारत के पास है, जो 2021 जनवरी से शुरू हुई है और 2023 तक भारत के पास रहेगी 2 साल तक। वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मिलती है। बाकी दोज हु आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC, वो हमेशा परमानेंट रहते हैं। दीज आर USA, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड चाइना एंड रशिया। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास UNSC की परमानेंट सदस्यता है। दे हैव आल्सो द पावरफुल वीटो पावर। वीटो पावर मीन्स दैट कि अगर if any resolution is adopted or being drafted in the UNSC and if any one of the 5 permanent members veto it, then the resolution can't be adopted. मतलब कोई भी एक अगर उस पर अपना असहमति जताए और उसे अस्वीकार करे तो उस resolution को adopted नहीं मान सकते हैं। तो वीटो की इतनी पावर है। India had been pushing for a veto power for its own and for a permanent membership of its own since very long, but till now it can't get. So, and recent statements by the US President Joe Biden has raised concerns of India regarding the permanent members. The Joe Biden has said that the current US President Joe Biden has said that the USA is willing to support the cause of Indian permanent membership in UNSC, but it is not willing. But USA is not willing to give India a veto power. So it is like that if you are being married and you will not get the main thing in the marriage. Like if you are a boy, then you will not get your life partner, and if you are a girl, then you will not get your life partner boy. Means that कि अगर आपने शादी की और आपको शादी करवा, कहने का मतलब कि शादी करवा दे रहे हैं लेकिन दुल्हन नहीं मिलेगी, तो ये मतलब ऐसी बात होगी कि परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को क्यों चाहिए? कि वीटो पावर के लिए, क्योंकि वीटो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर फॉर द परमानेंट मेंबर्स। और वो अमेरिका बोल रहा है कि परमानेंट मेंबरशिप तो देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। तो ये एक फनी स्टेटमेंट था जो बिडेन द्वारा। देखना आगे क्या होता है। पर इंडिया की ये बहुत लॉन्ग से इच्छा थी। तो खैर हम UNSC पे नहीं आते हैं, जब उस पर चर्चा करेंगे उस पर जाएंगे। UNGA पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक असेंबली, यहाँ पे UN के सब मेंबर्स आते हैं और उनके हेड्स भाषण देते हैं। जैसे इस बार जो हुआ था उसमें इमरान खान भी गए थे, पाकिस्तान के PM, शेख हसीना भी गई थी, मोदी जी भी गए थे। तो वहाँ पर शेख हसीना ने, बांग्लादेश की PM ने वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान को थोड़ी खरी खोटी सुनाई थी।
वो उन दिनों की याद कर रही थी जब उनके शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जब वहां पर आज़ादी आंदोलन चल रहा था, बांग्लादेश को अलग किया जा रहा था 1971 के वॉर के टाइम की, जब कैसे पाकिस्तान आर्मी द्वारा अपने ही देश के जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पर जुल्म किए गए, कैसे हजारों औरतों का रेप किया गया, कैसे सब लोगों को मारा गया, उस बारे में जिक्र किया जा रहा था। और बाद में कैसे फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया, तो उसी जिक्र में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, तो वो यूएनजीए में बोल रही थी। मोदी जी भी कैसे यूएनजीए में बोल रहे थे, इमरान खान भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोल रहे थे। वहीं पे मेजर चीज का डिक्लेरेशन होता है। तो उसी तरह 19 दिसंबर 2000 को एक यूएनजीए के डिक्लेरेशन द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर को अपनाया गया। लेकिन इससे पहले की कहानी क्या है? इससे पहले की कहानी है, जैसे कि मैंने आयरो दिया हुआ है कि 1994 में ही यूएनजीए, क्योंकि यूएनजीए तो लगभग एक बार तो बैठेगी नहीं, वो बैठती रहती है अपने, जो भी उनको अडॉप्ट करना होता है रिजोल्यूशन, या रिजोल्यूशन तो अडॉप्ट नहीं करते हैं, मतलब जो भी इनको डिक्लेरेशन करना होता है, प्रोक्लेमेशन करना होता है, घोषणा करनी होती है, तो यूएनजीए ने प्रोक्लेम किया था 1994 में ही कि वो अडॉप्ट करेंगे, और 2000 में डिक्लेयर किया, यानी 6 साल बाद डिक्लेयर किया। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? अब यूएनजीए प्रोक्लेमेशन में कहा गया था कि 6 सितंबर 1987 को ध्यान में रखते हुए ही, 16 सितंबर 1987 के इस डेट को ध्यान में रखते हुए ही 1994 में ये कहा गया था कि 16 सितंबर 1987 को जो हुआ उसको ध्यान में रखते ही 16 सितंबर को ही इंटरनेशनल ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मानना चाहिए। तो 16 सितंबर 1987 को ऐसा क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 को साइनिंग्स हुई थी। किस चीज पे साइनिंग हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आप पूछेंगे व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज नथिंग बट बेसिकली एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है which was and which is signed till by 46 members, 46 ये सिग्नेटरीज हैं। इसमें इंडिया भी है। इंडिया ने इसको सिग्नेचर किया था 19 जून 1992 को, मतलब 1987 को ये इसका फॉर्मेशन हुआ होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। उसके 5 साल बाद इंडिया इसको रेटिफाई करता है। इसको रेटिफिकेशन भी बोल सकते हैं और साइनिंग भी बोल सकते हैं। अब इसके जो साइनिंग्स हैं 46 हैं, लेकिन इसके 197 रेटिफायर्स हैं। अब ये कैसे हो सकता है? रेटिफायर मीन्स का आपको मालूम है कि समर्थन देने वाले और सहमति देने वाले। कहने का मतलब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स पे जो सिग्नेटरीज हैं, यानी उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो साइन किया है चार्टर पर, उसके पेपर्स पर, ऑफिशियल पेपर्स पर, वो तो 46 लोग ही हैं और इंडिया उसमें से एक है। लेकिन जो रेटिफायर्स हैं, रेटिफायर्स क्या होता है? वो उस प्रोटोकॉल को वो अपने देश की संसद से रेटिफाई करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, कोई भी यूएनएससी में रिजोल्यूशन हुआ कि इंडिया, चलिए मान लीजिए इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार, इन दोनों के बीच एक रोड कनेक्टिविटी बनानी है। तीनों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, लेकिन अब तीनों को अपने अपने पार्लियामेंट, क्योंकि सब इंडिया भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा है, थाईलैंड भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा है, और जो म्यांमार की गवर्नमेंट है, ये तीनों देश की गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी है। उन्हें पहले अपने पार्लियामेंट का परमिशन लेना होगा। तो इंडिया मान लीजिए उस रिजोल्यूशन को पार्लियामेंट में रेटिफाई करवाएगा, थाईलैंड रेटिफाई करवाएगा, म्यांमार रेटिफाई करवाएगा। तीनों को अपने अपने देश के पार्लियामेंट से, या फिर जो भी उनकी बॉडी है, जैसे इंडिया में उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, सीनेट, कांग्रेस, जो भी वहां पे यूएस में होता है, तो जो भी बॉडी है उस बॉडी से आप रेटिफाई करवाएंगे, तभी तो जाकर आप प्रोजेक्ट को लॉन्च कर पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे लॉन्च करेंगे? उस कारण से ही यहां पर रेटिफायर्स की शब्द आती है कि सहमति देना। तो 197 मेंबर्स ने सहमति तो दे दी है, 197 मेंबर्स ने सहमति दे दी है, लेकिन साइनिंग्स कितने लोगों ने किया है? 46। जो कंट्रीज किसी पे साइनिंग्स कर देती है, उन पर उनकी बाध्यता थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उन पर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो जाती है, क्योंकि वो साइन कर दिया तो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया। हाँ, जिसने साइन नहीं किया वो उस पर एक मोरल प्रेशर रहता है, पर उतना इथिकल प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन जो साइन कर दिया है उन पर, मैं लीगल प्रेशर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से उन पर ज्यादा प्रेशर रहता है, और होना भी चाहिए। इंडिया इसका रेटिफायर भी है, क्योंकि और साइनिंग भी किया था इंडिया ने। कब किया था? 19 जून 1992 में इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन किया था। अब कब से हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, और हम जान लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या।
तो मॉन्ट्रियल बेसिकली एक सिटी का नाम है, ये कनाडा की एक सिटी है, बेसिकली कनाडा की जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। कनाडा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली दूसरी सबसे बड़ी शहर है मॉन्ट्रियल। यहीं पे इसकी साइनिंग हुई प्रोटोकॉल। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है which has been derived or which has been formed to protect the ozone layer by depleting उसके डिप्लीशन से, उसमें जो ओजोन होल जो कॉन्सेप्ट आता है, ओजोन होल में कि ओजोन लेयर में एक जगह होल हो गया है, उसको बेसिकली होल नहीं हुआ था वहां पर, वो डिप्लीट हुआ था, मतलब वो जो लेयर था वो पतला हो गया था, और पतला होता तो इतना पतला हो गया था कि उसके अंदर से हार्मफुल यूवी रेज आ जाती थी। तो ओजोन लेयर की बात करते हैं कि 1994 में, सॉरी ये जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय पुटिंग आउट और बाय किकिंग आउट द हार्मफुल प्रोडक्ट्स दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स जो फैक्ट्रीज में होते हैं, उनको उनके उपयोग को रिड्यूस करने में और धीरे धीरे खत्म करने के लिए इस प्रोटोकॉल को लाया गया, और सभी कंट्री इसमें शामिल हुए, जरूरी था। तो उस समय उतने कंट्रीज शामिल नहीं हुए, पर अभी 197 कंट्रीज में शामिल है। बेसिकली 197 कंट्रीज भी नहीं, 193 तो, और 197 में से 193 तो यूएन मेंबर्स हैं, ऑल यूएन मेंबर्स। जो 4 हैं वो कौन कौन है? 4 में एक तो यूरोपियन यूनियन है, तो यूनियन के रूप में शामिल हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो भी शामिल हुए हैं अलग, एज एन इंडिविजुअल, they are inducted in the UN, so they are inducted in the Montreal Protocol also, but as an organization they are also inducted in Montreal Protocol by the European Union। तो ये भी एक मेजर संगठन है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज का, जिसकी करेंसी यूरो है एज यू नो। तो वहां पे इलेक्ट हुआ। बाकी जो 3 और हैं, दे आर सम आइलैंड्स हैं जो यूएन मेंबर्स नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट रूप में होते हैं वही हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। अब जहां तक हम बात करते हैं कि 16 से, और इसी डेट को कमेमोरेट कर, मतलब इसी डेट की याद में ही 1994 में यूएनजी का प्रोक्लेमेशन होता है कि 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर माना जाएगा। और 2000 में इसका 19 दिसंबर 2000 में इसका यूएनजी डिक्लेरेशन हो जाता है। उसके पहले 1994 के प्रोक्लेमेशन से पहले ही मॉन्ट्रियल प्रोडक्ट आ चुका था। तो हम अगर सिस्टमेटिक डेट से पढ़ते हैं, सबसे पहले 16 सितंबर 1987 को साइनिंग हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, जिसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी हार्मफुल प्रोडक्ट से। हार्मफुल प्रोडक्ट कौन कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, HCFCs, उनमें जो फोम लाइक वहां पर यूज होते हैं, उनके फोम लाइक जो गैसेस हैं वो यूज होते हैं, जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, वो जो रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो केमिकल लगते हैं जो रेफ्रिजरेटर को कूल रखते हैं, वो सब की जरूरत होती है। और इसको ही स्लो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए और ओजोन लेयर को बचाने के लिए ये लाया गया। ओजोन लेयर को बचाना क्यों जरूरी था? अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर को बचाना इसलिए जरूरी था कि ओजोन क्या चीज से बनता है? ओजोन का वैल्यू होती है O3, O2 ऑक्सीजन होता है, O3 ओजोन। इट इज एन पॉइजनस गैस, ये एक पॉइजनस गैस है, फिर भी बेनिफिट करता है ह्यूमन काइंड को इसलिए बेनिफिट करता है कि ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को, सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, और जो सिंपल रेज जो यूजफुल है ह्यूमन काइंड के लिए वो पृथ्वी पे भेजता है। अगर ओजोन लेयर नहीं हो, सारी हार्मफुल रेज यहाँ पे आ जाएंगी, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। पार्टिकुलरली स्किन कैंसर इज द मोस्ट कॉमन disease which can be caused by the UV rays if there is no ozone layer in the atmosphere. So it is necessary to protect the ozone layer. So अब अगर हम सिस्टमेटिक पढ़ लेते हैं, 16 सितंबर 1987 को साइनिंग्स होते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फॉर्मेशन होता है और साइनिंग्स होते हैं। उसके बाद 1 जनवरी 1989 को इफेक्टिव, 1 जनवरी 1989 को इसे हम इफेक्ट में ला देते हैं, यानी ये लागू हो जाता है। जैसे कि किसी भी चीज की साइनिंग्स के कुछ दिन बाद वो लागू होता है, जैसे कि 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 को, उसके बाद वो, पर उसकी डेट थी कि वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। वो दोनों मैप्स लद्दाख जम्मू कश्मीर के, और आर्टिकल 370 को एबोलिश तब से माना जाएगा 31 अक्टूबर से। तो इसी कारण से ये 1 जनवरी 1989 को इफेक्टिव होता है।
उसके बाद अगला डेट है 19 जून 1992। इस डेट को इंडिया इसको रेटिफाई करता है और साथ साथ में साइनिंग भी करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखते हुए 1994 में यूएनजीए का प्रोक्लेमेशन आता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के फॉर्मेशन की याद में 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में मनाया जाएगा। ये सिर्फ प्रोक्लेमेशन था। प्रोक्लेमेशन मतलब होती है घोषणा। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा में नहीं होती है, एक मतलब जैसे कि आप बोलते हैं, सिर्फ ऐसे बोलते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं, बताते हैं। डिक्लेरेशन आता है 19 दिसंबर 2000 को कि यूएनजीए का डिक्लेरेशन आता है कि इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में 16 सितंबर को अब से क्या बनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर माना जाएगा। इसके बाद से अब तक ये बनाया जाता है इंटरनेशनल, और आज है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यही बात बताने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया था कि ओजोन लेयर कितना इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के लिए, और उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें भी पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन करने से इनडायरेक्ट तौर पे आपके एटमॉस्फेयर में फर्क पड़ता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, तो इफेक्ट पड़ता है। तो उसी वजह से ओजोन, क्योंकि ओजोन लेयर अगर नहीं रहता, देखिए जो नेचर की ब्यूटी ऑफ नेचर, दैट O3 ओजोन लेयर इज इन पॉइजनस गैस, इज ए पॉइजनस, O3 इज ए पॉइजनस गैस। इफ यू कंज्यूम इट और इफ यू स्मेल इट देन यू कैन लीड टू डेथ, की मृत्यु हो सकती है। बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेथ, मतलब अ थिंग दैट कैन लीड अस टू डेथ इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डेथ by absorbing the harmful UV rays, by preserving the harmful UV rays of the sun to give us simple rays. So that is the nature, and there are many beauty examples of many beauties of nature. So one by one we will discuss that. You can't discuss all about the beauties of nature, but I will try to discuss some of them. So now I am ending this video. If you like, so I am telling you that please like, subscribe and share this video and keep watching my videos. So thank you for watching and keep watching.